Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lecture is a continuation of the previous lecture where we have studied the Markowitz portfolio theory. Today we will cover the 5 topics. First is the expected rate of return for an individual asset and for a portfolio of assets. Second is the variance and standard deviation of an individual asset. Third is the diversification. Fourth is the components of portfolio risk. And last we will study the correlation coefficient and the different types of relationship between the security returns. So first we will see how to determine the expected rates of return for an individual asset and for a portfolio of assets. So for an individual asset, it is the sum of the potential returns multiplied with the corresponding probability of the returns. And for a portfolio of assets, it is the weighted average of the expected rates of return for the individual investments in the portfolio. Computation of expected return for an individual risky investment. So here we will see how to compute the expected return for an individual risky investment. Probability is basically the possible outcome of the possible rate of return. So here 25% is the probability that we will receive a 8% return, and 25% probability that we can receive 10% return, and 25% probability that we can receive a 12% return, and there is a 25% probability that we can receive 14% return. So we just multiply the probability with the possible rate of return, and adding up we will receive the expected return. So here expected return is 0.11 or 11%. So it is very easy to calculate the expected return for an individual risky investment. Next is the computation of the expected return for a portfolio of risky assets. प्रीवियस स्लाइड में हमने सिंगल रिस्की एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न डिटरमिन किया था. अब हम कंप्यूट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ए पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट्स. तो पोर्टफोलियो का मतलब है कि एक से ज्यादा रिस्की एसेट्स. अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी रिटर्न जो है ये 10% जो है ये सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी का रिटर्न है. जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में एक सिक्योरिटी का रिटर्न डिटरमिन किया जो कि 11% था. इसी तरह यहाँ पे हमने 4 सिक्योरिटीज इंक्लूड की, यानी 4 सिक्योरिटीज का ये एक पोर्टफोलियो है. और जो 4 सिक्योरिटीज हैं हर एक का रिटर्न हमने यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी रिटर्न आ रही है इसमें लिखा है. जैसे फर्स्ट सिक्योरिटी है उसका 10% रिटर्न है, सेकंड सिक्योरिटी है उसका 11% रिटर्न है, थर्ड सिक्योरिटी है उसका 12% रिटर्न है, और फोर्थ सिक्योरिटी जो है उसका 13% रिटर्न है. तो जैसे हमने सिंगल एसेट का एक एसेट का डिटरमिन किया था, इस तरह हमने हर 4 एसेट्स जो थे उन सब के एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी रिटर्न्स जो है वो वैसे ही डिटरमिन करने हैं जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिटरमिन की. इसके बाद हमारी जो हर सिक्योरिटी है उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या परसेंटेज है या क्या वेट है उसको डिटरमिन किया. तो यहाँ पे जैसे ये वेट लिखा है जो फर्स्ट कॉलम है परसेंट ऑफ पोर्टफोलियो, तो ये 20% जो है हमने सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी 1 है तो 20% जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर सिक्योरिटी 1 के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की है. इससे 30% सिक्योरिटी 2 की इन्वेस्टमेंट है, 30% इन टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योरिटी 3 है, और फोर्थ जो है वो 20% है टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर. तो ये उसका वेट आ गया. उस वेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको जो रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी रिटर्न था, उसके बाद हमने उसको ऐड कर लिया तो ये हमारे पास वेटेड एवरेज रिटर्न आ जाएगा पोर्टफोलियो का, जो कि इस केस में है 11.1150 या 11.5%. So it is very easy to calculate the portfolio or expected return of a portfolio of risky asset. So after computing the expected return, now we will see how to determine the risk of an individual investment. So here it is the variance and deviation of returns for an individual investment. हमने रिस्क जो है वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने इसको स्टडी किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी और वेरिएंस को भी. तो हमें ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इट्स एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिस्क और इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें
तो हम उसको स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट कर लेते हैं। वेरियंस क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। यानी जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसके अराउंड जो है जो डिस्पर्शन है, जो वेरिएशन है, उसको वेरियंस मेजर करता है। So it is the same formula we have studied before for individual investment. फार्मूला क्या है? हमने समेशन ऑफ 1 to n आर आई में से एक्सपेक्टेड आर आई जो है उसको लेस किया। हर इंडिविजुअल रिटर्न जो होगा उसमें से हम उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न को उसमें से लेस करेंगे और उसका हम स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ, तो हमारे पास जो है वो वेरिएंस आ जाएगा। और वेरिएंस का अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगी। हम प्रीवियस इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू करते थे, अब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन डिटरमिन करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में वो लिखा है पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न 8%, 10%, 12%, 14%, एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 11%। जो हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का डिटरमिन किया था दैट वाज 11%। और हमने अब क्या करना है, हर इंडिविजुअल रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न को लेस करना है। तो शायद जो थर्ड कॉलम है उसमें हमने आर आई माइनस एक्सपेक्टेड आर आई लिख दिया। और जो फोर्थ कॉलम है हमने इसके बाद इस वेरिएशन का या डिवीजन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर लेने के बाद हमने उसको उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद हमारे पास जो है वैल्यूज आ गई हैं। इन सब का हमने सम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। इस वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगी। इस तरीके से हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सिंगल या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की। Diversification. So before computing the risk of a portfolio, it is important to understand the concept of diversification, correlation, and covariance or co-movement, because these concepts have an important role in determining the risk of a portfolio. So first we will discuss diversification. Diversification is the key to the management of portfolio risk because it allows investors to significantly lower portfolio risk without adversely affecting return. Diversification basically क्या है या हम क्यों करते हैं? इसका पर्पस ये होता है कि हम जो है वो एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि हम पोर्टफोलियो के रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ये है कि इससे हम पोर्टफोलियो रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक ही सिक्योरिटी में आप लगा दें तो और वो सिक्योरिटी अच्छा परफॉर्म ना करे या वो स्टॉक जो है वो कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाए तो आपके जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी आप लूज कर जाए। तो उससे उसको बेहतर ये है कि हम एक ही जगह इन्वेस्टमेंट ना करें बल्कि एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सके, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें विदाउट अफेक्टिंग दी एडवर्सली अफेक्टिंग द रिटर्न्स। रैंडम डाइवर्सिफिकेशन क्या है? क्योंकि मार्कोविट से पहले जो हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे थे वो रैंडम डाइवर्सिफिकेशन थी। तो random or naive diversification refers to the act of randomly diversifying without regard to how security returns are related to each other. तो जो रैंडम या नेव डाइवर्सिफिकेशन है बेसिकली उसमें हम रैंडमली स्टॉक्स या सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करते हैं सिर्फ बगैर देखे ये देखे कि इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो उसमें हमारी जो कंसिड्रेशन वो ये नहीं है कि दो सिक्योरिटी रिटर्न्स की आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये कैसे मूव करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं हम उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या रही है और हम उसको रैंडमली जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं स्टॉक्स। As we add securities to a portfolio, the total risk associated with the portfolio of stocks declines rapidly. The first few stocks cause a large decrease in portfolio risk. आप जब ऐड करते हैं पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को तो उससे जो सिक्योरिटीज का रिस्क है, ये जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो जो है वो रैपिडली यानी तेजी के साथ नीचे की तरफ आता है। जब आप शुरू में जब आप 8-10 स्टॉक जो है इसमें ऐड करते हैं, लेकिन साथ जब आप फर्दर उसके बाद ऐड करते रहते हैं तो वो स्टॉक जो है
जो पोर्टफोलियो रिस्क है वो तो डिक्रीज करता है, लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट नॉट एन इंक्रीजिंग रेट। तो रैंडम डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ये है, जैसे कि लोगों ने ये महसूस किया जब उनके पास कोई ऐसा फॉर्मल थ्योरी नहीं थी, और उन्होंने जो है वो इस कॉमन सेंस को यूज करते हुए कि अगर हम एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे बेहतर ये है कि हम ज़्यादा जगह पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकें। तो उसके लिए हमने रैंडम डाइवर्सिफिकेशन करते रहे। बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन किक इन इमीडिएटली, two stocks are better than one, three stocks are better than two, and so on। उसका बेनिफिट ये है डाइवर्सिफिकेशन का, जो आप समझते हैं ये है कि दो स्टॉक्स, जारी बात है, वो एक स्टॉक से बेहतर है। इसी तरह तीन स्टॉक्स दो से बेहतर है, और आपके चार स्टॉक्स जो है वो तीन से बेहतर है, यानी सो ऑन। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अगर फेल होती है या उसमें हम एक्सपेक्टेड रिटर्न अर्न नहीं कर पाते, तो बाकी स्टॉक से जो है वो जो रिटर्न हमें रिसीव होगा वो उसको कंपनसेट कर लेगा। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए की जाती है, जैसे एक प्रोवर्ब भी है कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी आप सारे अंडे एक ही बास्केट में मत डाल दें, तो अगर गिर जाए तो सारे के सारे अंडे तबाह हो जाए। तो बेहतर यह है कि आप जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप जो है वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। However, diversification cannot eliminate the risk in a portfolio. As additional stocks are added, risk is reduced, but the marginal risk reduction is small. डाइवर्सिफिकेशन है, जो रैंडम डाइवर्सिफिकेशन है बेसिकली जिसकी हम कोई बात कर रहे हैं, वो उससे जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं होता। और जितना अगर आप स्टॉक्स ऐड करते रहें तो एक खास लिमिट के बाद जो है उसमें जो रिडक्शन होती है रिस्क के अंदर वो बहुत स्मॉल होती है। तो लेकिन वो उसको 100% जो है वो रिस्क जो है उसको वो एलिमिनेट नहीं करता। Although random diversification is clearly beneficial, it is generally not optimal। जो रैंडम डाइवर्सिफिकेशन है, ऑब्वियस है कि उससे हमें बेनिफिट मिलता है, हम अपने रिस्क को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर लेते हैं, लेकिन हम उसको एक ख़ास हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकते, और इसलिए जो है वो उसे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं कह सकते। So to take full advantage of the benefits of diversification, we need to understand efficient diversification। तो हमें ये समझना है कि हम कैसे एफिशिएंटली डाइवर्सिफाई करें, वो क्या प्रोसीजर अपनाएं कि जिसके थ्रू हम एक पोर्टफोलियो जो है वो कंस्ट्रक्ट करें जो कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो, और हम एलिमिनेट कर सकें अपने रिस्क को। दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड पोर्टफोलियो रिस्क विद इन अ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कॉन्टेक्स्ट। तो हमें जो है वो इसमें हम पढ़ेंगे कि पोर्टफोलियो रिस्क जो है जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी हमें क्या कहती है कि कैसे पोर्टफोलियो रिस्क को आप जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं या इवन एलिमिनेट कर सकते हैं। The components of portfolio risk. To calculate the risk of a portfolio as measured by the variance, we must account for two factors. One is the weighted individual security risk, such as the variance of each individual security, weighted by the percentage of investable funds placed in each individual security. Secondly, weighted co-movements between securities returns. Co-movement means how the two security returns moves together, such as the covariance between the securities returns, again weighted by the percentage of investable funds placed in each security. Covariance is an absolute measure of the co-movements between security returns used in the calculation of portfolio risk। जब portfolio risk जो है उसको measure करेंगे तो उसमें हम covariance का factor जो है उसको यूज करेंगे, और covariance बेसिकली एक absolute measure है जो ये बताता है या डिग्री बताता है कि दो सिक्योरिटी रिटर्न्स कैसे मूव कर रहे हैं। We need the actual covariance between securities in a portfolio in order to calculate portfolio variance or standard deviation. Before considering covariance, however, we can easily illustrate how security returns move together by considering the correlation coefficient, a relative measure of association। तो सबसे पहले जो है हम correlation को स्टडी करेंगे और correlation coefficient को स्टडी करेंगे कि कैसे वो एसोसिएशन बताता है दो सिक्योरिटी रिटर्न्स की, जो कि कोवेरियंस का एक पार्ट है। Correlation coefficient. The correlation coefficient, pronounced as Rahu, इसको Rahu कहते हैं, statistical measure of the extent to which two variables are associated। जो correlation coefficient है वो ये बताता है कि दो जो सिक्योरिटी रिटर्न्स हैं, ये दो वेरिएबल्स हैं,
वो आपस में कैसे एसोसिएटेड हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। It measures the extent to which the returns on any two securities move together. However, it denotes only association, not causation. ये पॉइंट हमने याद रखना है कि जो कोरिलेशन होती है वो सिर्फ एसोसिएशन बताती है बिटवीन द टू सिक्योरिटीज, लेकिन वो ये नहीं बताती है कि जो एक सिक्योरिटी है वो दूसरी सिक्योरिटी ऊपर कितना डिपेंड कर रही है या वो उसको कैसे अफेक्ट कर रही है। तो अफेक्ट नहीं बताती है, डिपेंडेंसी नहीं बताती है, बल्कि वो इंडिपेंडेंट दो सिक्योरिटीज के दरमियान में एसोसिएशन बताती है कि हाउ दो जो है जो टू सिक्योरिटीज आर रिलेटेड विद ईच अदर। Its range is from -1 through 0 to +1। और -1 का मतलब है perfectly negative correlation, और 0 का मतलब है there is no correlation, और perfect +1 का मतलब है perfect positive correlation। So first we will discuss perfect positive correlation. With perfect positive correlation, the returns have a perfect direct linear relationship. इसका मतलब ये है कि अगर दो सिक्योरिटीज रिटर्न्स जो हैं उनके दरमियान अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो वो उनके उनकी आपस में जो रिलेशनशिप होगी वो परफेक्ट डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप कहलाएगी। जिसका मतलब ये है कि अगर एक सिक्योरिटी के रिटर्न्स 5% के साथ बिलफर्ज इंक्रीज करते हैं तो दूसरी सिक्योरिटी के रिटर्न्स भी सेम प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज करें। अगर एक सिक्योरिटी के रिटर्न्स जो है वो 5% के साथ डिक्रीज करते हैं तो जो दूसरी सिक्योरिटी है उसके रिटर्न्स भी जो है वो सेम प्रोपोर्शन के साथ डिक्रीज करें। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में जो एसोसिएशन है बेसिकली वो परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये सिर्फ एसोसिएशन को बताते हैं, रिलेशनशिप को बताते हैं, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई की है थ्रू कोरिलेशन कोएफिशिएंट। द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो एज मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन is identical to the standard deviation of either stock by itself. When returns are perfectly positively correlated, the risk of a portfolio is simply a weighted average of the individual risks of the securities. अगर perfectly positive correlation है तो फिर आप simply उसका weighted average ले लें individual securities के standard deviations का, तो आप जो है वो portfolio का risk determine कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि this is the one case where diversification does not lead to a reduction in risk। अगर हम ऐसे सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फिर हमें डाइवर्सिफिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं होगा और हम रिस्क को मिनिमाइज या रिड्यूस नहीं कर सकते। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन अगर हो सिक्योरिटीज के दरमियान तो उससे हम जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो पोर्टफोलियो जो है हमें उसका रिस्क को रिड्यूस करने में कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी थ्योरेटिकली तो इसका कोई बेनिफिट नहीं, यानी हमें ऐसे स्टॉक जिनकी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो उसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ये कहते हैं जो कि फाइनेंस के थ्योरिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी आपके पास चांस और ना हो जिसमें कोई अगर आपको मिले ही परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तो फिर भी उसको चाहिए इन्वेस्टर्स को कि वो 1 से 2 स्टॉक के अंदर या 3 स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, पोर्टफोलियो फिर भी कंस्ट्रक्ट करे अगर उसके पास और कोई चॉइस नहीं। Second is the perfect negative correlation. With perfect negative correlation, the securities returns have a perfect inverse relation, linear relationship to each other. यानी इसमें अब ऑपोजिट हो गया। जो परफेक्ट पॉजिटिव था उसमें तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसमें वो इनवर्स जो है वो लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे। यानी अगर एक स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जा रही है तो दूसरे स्टॉक की प्राइसेस नीचे आ रही होंगी विद द सेम प्रोपोर्शन। when one security return is higher, the other is low. Combining two assets, the deviations in the returns of these stocks around their average return cancel out. This portfolio has no risk. अब क्योंकि वेरिएशन जो है वो वेरिएशन अगर एक में वेरिएशन पॉजिटिव है और दूसरे में नेगेटिव है और सेम प्रोपोर्शन है तो वो एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो जीरो हो जाए। तो अगर दो सिक्योरिटीज हों जिनमें परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो वो सबसे बेहतरीन पोर्टफोलियो कहलाएगा क्योंकि वहां पे रिस्क जो है वो जीरो हो। लेकिन आइडियल, क्योंकि एक आइडियल सिचुएशन है और जो एक्चुअल मार्केट के अंदर ऐसी सिक्योरिटीज जो होती हैं वो इतना आसान नहीं होता कि जिनमें परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। जीरो कोरिलेशन। विद जीरो कोरिलेशन देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ द टू सिक्योरिटीज। अब वो सिक्योरिटी जिनमें जीरो कोरिलेशन है जिसके अंदर आपस में जो है कोई कोरिलेशन नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है।
Combining two securities with zero correlation with each other reduces the risk of the portfolio. इसी सूरत में क्या होगा कि अगर आप ऐसी दो सिक्योरिटीज को ऐड करते हैं जिसका जीरो कोरिलेशन होगा आपस में, तो उससे पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं। If more securities with uncorrelated returns are added to the portfolio, significant risk reduction can be achieved. However, portfolio risk cannot be eliminated in the case of zero correlation. लेकिन आप जो है वो जैसे परफेक्ट नेगेटिव में एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन अगर जीरो कोरिलेशन हो तो उसमें आप पोर्टफोलियो रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको आप completely eliminate नहीं कर सकते। While a zero correlation between two security returns is better than a positive correlation, लेकिन जो जीरो कोरिलेशन है वो बेहतर है कि आप अगर आपके पास सिक्योरिटीज हों और उसमें अगर आपके पास दो ऐसी सिक्योरिटीज हो जिसमें जीरो कोरिलेशन है और ऐसी सिक्योरिटीज हो जिसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है यानी जीरो से अबव है, तो बेहतर ये है कि हम उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करें जिनकी आपस में जीरो कोरिलेशन। Last is less than perfect positive correlation. With positive correlation, risk can be reduced but it cannot be eliminated. Less than perfect का मतलब ये है कि ये वो सिक्योरिटी रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं जिनका रिलेशनशिप +1 नहीं है, यानी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो +1 नहीं है, बल्कि ये 0 और +1 के इन बिटवीन है। अगर 0 +1 के इन बिटवीन होगा तो इट इज कॉल्ड लेस देन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हम ऐसी सिक्योरिटीज जिनकी लेस देन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो उसका अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें तो उससे हम रिस्क को तो मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन रिस्क को हम completely एलिमिनेट नहीं कर सकते। Other things being equal, investors wish to find securities with the least positive correlation possible. Ideally, investors would like securities with negative correlation or low positive correlation, but they generally will be faced with positively correlated security returns. अगर हम इन्वेस्टर्स जो है आइडियली अगर हम देखें तो इन्वेस्टर तो ये चाहते हैं कि वो नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि नेगेटिव कोरिलेशन में आप मैक्सिमम अपना रिस्क जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर परफेक्ट नेगेटिव हो जो कि एक आइडियल सिचुएशन है वो तो शायद ऐसी सिक्योरिटीज हमें ना मिले। तो आप ये चाहेंगे कि वो अगर -1 नहीं है तो -1 से नीचे जीरो -1 के इन बिटवीन जो है वो आपको कोई ऐसे सिक्योरिटीज के कम्बिनेशन मिल जाए जिससे आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। अगर ये नहीं मिलते तो फिर जो है वो जीरो से अबव अगर हम चले जाएं तो फिर उसमें जो है लीस्ट जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो उन सिक्योरिटी के रिटर्न्स का हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि इससे हम जो है वो पोर्टफोलियो रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। Over the decade ending in 2011, the average correlation between the stocks in the S&P 500 and the index itself was about 0.55. तो अगर हम इसको हिस्टोरिकली चेक करें जो कि 2011 तक का हमारे पास डाटा उसको हमने देखा है डिकेड का, तो उसमें जो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है ऑन एवरेज वो है 0.55 यानी +0.55। जीरो से अबव है, 1 से जो है वो कम है। तो नॉर्मली जो है वो अगर हम देखें स्टॉक्स में तो उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है और वो नॉर्मली लेस देन 1 ही होती है। तो खैर हम इसके थ्रू जो है वो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज करते हुए हम सिक्योरिटी रिटर्न्स के दरमियान कोरिलेशन को चेक करते हुए डिटर्मिन करते हुए जो है वो सिक्योरिटी पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एफिशिएंट पोर्टफोलियो को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ख़ासकर ऐसी जगह पे हम जहाँ पे कि जो कोरिलेशन है वो कम से कम हो, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव भी कम से कम हो। पहले तो प्रेफरेंस ये है कि नेगेटिव जो है वो कोरिलेशन हो सिक्योरिटी रिटर्न्स में, और अगर नेगेटिव नहीं हमें मिलती तो फिर एटलीस्ट जो है वो पॉजिटिव हो, लेकिन पॉजिटिव कम से कम हो। तो ऐसे पोर्टफोलियो जो है फिर हमारे लिए हमें उसका बेनिफिट ये होगा कि हम अपने जो रिस्क है पोर्टफोलियो का उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे। जो बाकी टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।